بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین الاسکا میں صدر ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات ہوئی جس میں کوئی بقول ٹرمپ کے کہ بڑی پازیٹیو ملاقات ہوئی لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. اس کے بعد صدر زلنسکی یوکرائن کے جو صدر ہیں وہ یورپی یونین کے نمائندوں اور فرانسیسی صدر میکرون اور نیٹو کے نمائندوں کے ہمراہ پھر ملاقات ہوتی ہے اور ایک نقشہ پیش کیا جاتا ہے جس میں یوکرائن جو ہے 20% چھوٹا کر کے زلنسکی کو دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ لو، یہ نیا نقشہ ہے اور اس جنگ کو ختم کرو. انڈیا تو دیا یوکرائن نے کہ ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر اس کو ماننے کا انڈیا دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک اور اس سلسلے میں میٹنگ ہوگی جس میں پیوٹن، زلنسکی، یورپی یونین کے نمائندے اور صدر ٹرمپ بیٹھیں گے. خطے میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. روس کیا کام ڈالے گا، اور آج کی ویڈیو کا جو کہتے ہیں تھمبنیل وہ یہ ہے کہ کیا یورپین کا سودا تو نہیں ہو گیا، ٹرمپ نے یورپین کو بیچ تو نہیں دیا، اور خطے میں نیا تنازع کتنا سنگین ہونے والا ہے. ٹرمپ نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ میں یہ جو حماس ہے اس کو ختم کر دوں گا، زیرو. اور دوسری طرف اسرائیل کا جو منصوبہ ہے کہ پورا غزہ جو ہے وہ خالی کر کے ایک نیا جو ہے ایک نئی جو ہے آبادی بسائی جائے. کیا دنیا کی شکل بدلنے والی ہے؟ لیکن سب سے بڑا اہم سوال کہ کیا یورپین کے ساتھ کہیں دھوکہ تو نہیں ہو گیا؟ اس سوال کا جواب جانتے ہیں ہماری فیمس اسٹرالوجر، بزنس کنسلٹنٹ اور ریلیجیس اسکالر محمد اسامہ انیف صاحب سے. جی اسامہ صاحب. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کوئی جگہ کا تنازع جو شو کیا جا رہا ہے لوہانسک کا یا ڈونیٹسک کا یا اس کا، وہ ایک اس طرح ہماری طرح ہمارے بارڈر ایریاز میں جس طرح کی موومنٹس یا چیزیں اٹھتی ہیں اس طرح کا ایک معاملہ ضرور تھا. لیکن یہ جنگ جو ہے یہ بہت پرانی جنگ ہے جو ٹلتی آ رہی تھی، جس نے اب ہونا تھا. اور یہ وہ پیوٹن بڑی دفعہ ان کو ڈھکے چھپے لفظوں میں سمجھا چکے تھے کہ رک جاؤ، بس کرو، نہ کرو. لیکن یہ اپنے عزائم میں بڑی تیزی سے آگے بڑھتے 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 اس دن کو لائے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جو سلوشن ہے وہ بغیر یورپ کو قربانی دیے یا بغیر یورپ کو وہ دیے، جیسے کہتے ملے گا، خون بہے گا، ان کو قربانی دینی ہوگی. کیونکہ انہوں نے بیسیکلی جن ممالک کو بھی اپنے ساتھ یورپی یونین میں یہ لاسٹ 15 سالوں میں شامل کیا ہے، اس شامل کرنے کے پیچھے صرف فوجی قوت لینا ہے. وہ غریب ممالک، وہ رشین بارڈر کے قریب لگتے ممالک جن کے افراد کو جنگ میں جھونک کے انہوں نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے. یورپ نے اگلے جو لاسٹ 15 ایئرز میں جتنے بھی ممالک کو اپنے ای یو میں شامل کیا ہے یا ای یو کے خواب دکھائے ہیں، وہ سب کے سب وہ ہیں جن کی انہوں نے قربانی دینی تھی رشیا سے لڑنے میں، لڑانے میں، اور رشیا کو جو ہے کمزور کرنے میں. اور خصوصاً یہ جو سارا پروجیکٹ تھا یا یہ جو سارا میٹر تھا یہ نیٹو میں یوکرائن کے شامل ہونے اور نہ ہونے کا ہے. پوائنٹ سمجھیں. اگر مثال کے طور پہ لوہانسک اور ڈونیٹسک پیوٹن کو دے بھی دیں اور یوکرائن کو پھر آپ نیٹو کا ممبر بنا دیں تو بارڈر تو پھر نیٹو کا بارڈر پیوٹن کے ساتھ آ گیا. تو اس کی تو ڈے ون کی بات تھی کہ میرے بارڈر پہ نیٹو کو نہ بناؤ، کیونکہ میں اگر اس سے فائٹ کروں گا تو پھر وہ نیٹو کا ممبر ہوگا، آپ سارے میرے سے لڑنے آ جاؤ گے. اور اسی وجہ سے آپ جارجیا کا بھی ایک دفعہ 2011-12 میں ایشو ہوا تھا، یہ اس وقت سے اس کو بھی ہاتھ میں کرنے کے چکر میں تھے. اور یہ جو اب ٹرمپ روڈ بن رہی ہے جس کی ایران نے مخالفت کی،
आजरबाईजान और उसकी। तो ये जो सारी सिचुएशन जो आप लोगों को नजर आ रही है बेसिकली, ये तो एक आम सा मतलब जैसे कहते हैं ब्रेन भी इसको पकड़ता है कि यूक्रेन रशिया डिबेट हो रही है, उसके दरमियान में अचानक यूरोप अपना डिफेंस बजट क्यों बढ़ाने लगता है? यूरोप को क्या प्रॉब्लम है? यूरोप को क्या खतरा है? यूरोप की कौन सी जगह का तनाजा है? यूरोप का क्या मसला है? यूरोप क्यों खौफ महसूस कर रहा है? यूरोप ने ऐसा क्या गलत किया है जो उसको प्यूटन से थ्रेट है? असल बात ये है कि ये जो सारा बलि का बकरा बनाया यूक्रेन को, ये यूरोप ने बनवाया है, और बनाने का मकसद रशिया को कमजोर हालत में ला के इसका एक तो प्यूटन से जान छुड़ाना है मकसद, प्यूटन को उड़ाना है मकसद, रिजीम चेंज है मकसद, हुकूमत का चेंज है। मिसाल के तौर पे जब ये कहा जाता है कि जी रशिया जिनको भी सप्लाई दे रहा है वो रशिया को उससे सप्लाई ना ले तो ये जंग बंद हो जाए, तो भाई आप भी यूक्रेन को पैसे ना दे तो जंग बंद हो जाए। आप भी ना दे, वो सरेंडर कर दे, बस जंग खत्म। सुबह जेलेंस्की को रिप्लेस कर दें, हल तो सोल्यूशन तो देखें, ये भी सामने टेबल पे पड़ा है। जो प्यूटन कहता है कि यार ये कोई डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट नहीं है जेलेंस्की, इसको उठा के परे करें, नया आप यूक्रेन का सदर लाएं, नई उसकी पार्लियामेंट बनवा दें, और नेटो की अपनी बात से पीछे हो जाएं कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, जंग खत्म है। मसला यहाँ ये है कि बेवकूफ ये बनाया जा रहा है जैसे ये कोई यूक्रेन के जमीन का, लुहांस्क और डोनेस्क का मसला है, और इतनी दुनिया। तीसरी एक और बात भी है जो एक्चुअल लोग जिसको नहीं समझ पा रहे, जिसको मैंने डे वन से, आपको याद होगा इसको पहले हम प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके, कि ट्रम्प सिर्फ प्यूटन, चाइना और कोरिया, नॉर्थ कोरिया की ज्वाइंट अटैक से बचने के लिए ये सारा ड्रामा कर रहा है। ट्रम्प सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, अमेरिका को डायरेक्ट अटैक से बचाने के लिए इस तरीके का बिहेव कर रहा है, आंखों में धूल झोंक रहा है, जबकि सारी दुनिया बच्ची नहीं है कि डीप स्टेट काम करती है, और अमेरिकन मिशंस जो है वो सालों से चलते हैं, वो कोई नए सदर आओ के उसको कुछ नहीं कर पाते। मतलब बाइडन ने वो फॉलो किया, वही ट्रम्प फॉलो करेगा, वही पीछे, ये 20-20, 25-25 साल मंसूबे हैं। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये सारे का सारा जो जिसको कहते हैं ना कि ये जो रोड मैप है या ये जो जंग है, ये सिर्फ और सिर्फ रशिया को और उसके अलाइज को फेस करनी है, ब्रिक्स को फेस करनी है, रशियन अलाइज को फेस करनी है, और नेतन्याहू के दुश्मनों को फेस करनी है। और नेतन्याहू इनका मॉनिटर है या इनका नुमाइंदा है अरब में अब, और अमेरिका उसी को सारी पावर्स दे के उसके जरिए सारे अरब ममालिक को ऑपरेट करना चाहता है। और इसी तरीके से जो रशिया और उसके अलाइज जो कि इसके लिए थ्रेट हैं, उनको सेम टाइम पे उधर एंगेज कर दिया गया। टेक्निकली अगर आप देखें, हमास का जब अटैक हो रहा था उसी वक्त रशिया यूक्रेन भी शुरू हो रहा था, राइट, एग्जैक्टली। इसको मैच करें जरा, जब हमास अटैक कर रही थी सेम टाइम पे रशिया यूक्रेन जंग में जा रहे थे। क्यों? क्योंकि रशिया ही वाहिद मुल्क था जिसके शाम से अच्छे ताल्लुकात, जिसके ईरान से अच्छे ताल्लुकात, जो इनको बैक कर रहा था, शाम में भी बैठा था। अच्छा, इस टाइम यमन के जो वो लोग हैं वो भी चाइना और इसी के ज्वाइंट क्लाइंट या कस्टमर कह लें। रशिया को उधर उलझाया गया ताकि वो अपने इन एलाइज की नेतन्याहू के खिलाफ मदद उस तरीके से ना कर पाए, उसका इतना मसाला उधर ही चलवा दिया गया। प्लस इधर इसको मौका मिला, फिर इसने असद रजीम टेक ओवर करवाया, ईरान अटैक, हिजबुल्लाह का खात्मा। तो आप अगर लाशौरी तौर पे देखें तो ये हमास की इस हमले से सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू ने अपने पूरे खित्ते के अहदाफ को हासिल किया, और रशिया को उधर उलझाए रखा है ताकि रशिया अगर वेला होता और ये जंग ना होती, तो आपका क्या ख्याल है प्यूटन शाम में और इन सारे एरियाज में अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश ना करता? तुर्की जो खिलाफत को रिस्टोर करने के ख्वाब देखने लगा था,
100 साला मुआहदा तुर्की का पूरा हुआ था एग्जैक्टली 1924 से 2024 में तुर्की का वो 100 साला मुआहदा भी पूरा हो गया था। अब तुर्की अगर पावरफुल हो जाता या तुर्की रशियन अलायंस में आके कोई स्ट्रेंथन हो के अपने वापस टेरिटरीज को या वापस कोई अपने उसको कायम करने की कोशिश करता, तो उसमें जो सबसे आसान तरीन जगह थी वो सबसे पहले शाम थी, जिसमें रशियन बंदा था, जिसमें अनरस था, जंगें थी, सारे मामला थे। तो ये बेसिकली एक जंग नहीं है, मतलब ये दो जंगें नहीं है, ये नेतन्याहू की जंग को दोनों साइडों से खेला जा रहा है, रशिया को उधर उलझा के और उसके अलाइज को जमीन बोस करना। अब इस वजह से ये बात हतमी तौर पे ले लें मेरी तरफ से कि इसमें अब तक तो आप देखें, ये मीटिंग का भी हमने जब जिक्र किया ना, कुछ भी नहीं होना, ट्रम्प बंद कर ही नहीं सकता जंगे। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका सिर्फ अपनी फेस सेविंग कर रहा है कि ऐसी मैं अपना रूप धार लूं जिसके तहत ये जंग अभी इनका इनका बहुत बड़ा, अब इसका मतलब अटैक होना है आपस में। अटैक बढ़ चुके हैं लास्ट वीक से, यूक्रेन भी तेज हो गया, वो भी तेज हो गया, और इधर से टेबल पे अमेरिका ला के बातें कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ उलझाने की टैक्टिस है, ये सिर्फ डिवीजन क्रिएट करने की टैक्टिस है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्यूटन ने मारना है तो जुग जुग वो जैसे कहते हैं यूके को मारे, फ्रांस को मारे, इटली को मारे, हमें कुछ ना कहे, जो असल बुनियाद थे, जिन्होंने ये बाइडन ने जो इस जंग को इनिशिएट किया, बैकअप किया, यूक्रेन अगले ने विजिट किए, पूरी इधर लैब्स थी, सारा जैसे कहते हैं ना, इनका ज्वाइंट मिशन था, नेटो का ज्वाइंट मिशन था, जिसको अब ये पुल बैक इसलिए कर रहा है कि बस अमेरिका को कुछ नहीं होना चाहिए, और कहानी वही अमेरिका फर्स्ट, और अब यूरोपियन को भी तारे नजर आ रहे हैं। जबकि इंडिया को अगर पाबंदियां लगाते हैं तो वो कहते हैं कई मुल्क अभी भी गैस ले रहे हैं रशिया से, यूरोपियन कई अभी भी उसमें कर रहे हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं? तो इसलिए ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को बचाने की आखिरी कोशिश है, अमेरिका, गिरते हुए अमेरिका को बचाने की आखिरी चालबाजी है, बस यूं कह लें। अब लास्ट गजा को खाली कराना ही मिशन था, इसीलिए ट्रंप ने देखें पहले का आते ही उसने ये कहा कि उसको एक इंटरनेशनल टूरिस्ट बीच बना दें, उधर रियल स्टेट का प्रोजेक्ट ले आए। ये कहानियां उसने आते ही की थी, अभी उसको कुछ दिन हुए थे, मतलब कोई महीनों की बात नहीं है। फिर देखा कि हालात नहीं बने, जी मैं सीज फायर करा रहा हूं, वो सीज फायर ऐसी हुई कि उसके बाद खाने की लाइनों पे भी गोलियां चलने लगी। अच्छा, जब तक ट्रंप नहीं आया था, जब तक ये सब नहीं हुआ था, कभी भी फूड कैंप पे गोली नहीं चली, सहाफी पे गोली नहीं चली, या फूड की लाइनों पे या रिलीफ कैंप्स में फायरिंग नहीं हुई। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि लगातार रिलीफ कैंप्स पे फायरिंग, कल फिर मतलब 25-30 कम ऑन। मतलब ये है कि ये सिर्फ एक धोखा है, दुनिया को धोखा में रखने का धोखा एक क्रिएट कर रहा है ट्रम्प, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है, जिसमें नेतन्याहू को मुकम्मल सपोर्ट है कि गजा को खाली करा लो। अब होगा ये कि इस वक्त की जो सिनेरियो है उसमें ये इसमें कामयाब किसी हद तक होने के करीब पहुंच जाएंगे, पहली बात। लेकिन इतने ही टाइम में आ जाएगा अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 से जो गेयर लगेगा दुनिया को, वो गेयर ऐसा होगा कि बेरों की तरह मुल्क आपस में जंगों में गिर रहे होंगे यूं। अभी तो होता है ना, इक्का दुक्का आता है, जैसे इस टाइम का हॉट कंट्री जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जंग में, वो तुर्की है। मतलब तुर्की को कल आ जाए, सुबह आ जाए, तुर्की का नंबर लगा पड़ा है। अच्छा, हम ऑलरेडी जंग में ही हैं, क्योंकि ना ऑपरेशन सिंदूर टला है, ना हमारी तड़ियां धमकियां टली हैं। ठीक है जी, हम अभी होल्ड पे हैं, सिर्फ हमारी कोई रुकी रुकाई नहीं है जंग, पहली बात। इसी तरीके से ये तुर्की का बस अब जो है ना नंबर, वेरी नेक्स्ट तुर्की है इस जंग का अगला शिकार, उसको आने दें, उसके बाद कहानी देखें किधर जाती है। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपके वक्त का नासिन इजाज़त दें।
ایک نئی ویڈیو، نئے ٹاپک، نئے ایشو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.